Okay, shall we start? Okay, so very less people are there. So although I don't know why people are not joining for the classes. So हम लोगों का काम है कहना ही, बाकी अगर नहीं ज्वाइन कर रहे तो मैं you will see कि there will be some difference. So I think everybody is informed about the class. So how many people are there in the last class? 10 were there. Okay, so I think in this still 6 are there. So we will see in this week अगर ऐसे ही attendance रहा तो we will take some action. I will inform to principal also. So if ऐसे ही, क्योंकि आप हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं है, अगर क्लास नहीं होगा तो अपना हम लोगों का कुछ नहीं जा रहा है. So let's start. So in the last session we have seen Shannon, Fanon and Huffman coding. So आपको is that was clear to you? It was taught ITC सब्जेक्ट में पढ़ाया गया आपको ये चीज, जनरल फंड हफमैन कोडिंग. वो चीजें क्लियर हो गई जो मैंने दो प्रॉब्लम बताया था आपको. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आप अभी आगे आईटीसी में भी पढ़ाया जाएगा, एंटीना में भी देखेंगे अभी आगे आएगा, तो अगर आपके पास 10 ईयर का पेपर होगा तो उसमें भी देखिएगा, उसमें तो प्रॉब्लम आता रहता है. सो प्रॉब्लम विल बी देयर. सो नाउ इन दिस सेशन in the antenna we are going to deal with antenna only. So we will see basic parameters of radiation pattern. So some parameters are there in radiation pattern of an antenna with some definition. So we are going to see that. So in the last class of antenna, I've already told you, based on the radiation pattern, there are three types of antennas are there. So first one is directional, omnidirectional, isotropic antenna. So, and one more thing, based on this only antennas are classified. So all these three things I've told you already in the last session. So now some parameters are there on based on those radiation patterns. So I'm going to tell you about these only. So first of all, I will tell you in two ways, in circular also and in a straight line also. So let's draw the circular plane. So if any point, if you're not getting it, so you can stop me and you can ask me. So these are the basic thing which we are going to deal. So suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is our circular plane. And in a straight line like this, if I'm going to see, so this is the straight line. So अभी धीरे धीरे करके ये भी समझ में आने लगेगा. So this is gain, and this is 60, 120, 180, and this will be minus 60, minus 120. Let me draw it in a minus 120, minus 180. So I've told you the definition of gain. So can anybody tell me what is gain? Because actually gain, antenna में gain ही सब कुछ है. So can anybody tell me how we can define gain, or what is gain? How to define gain? किसी के पास idea है कैसे gain को define करेंगे? So please tell if any. This is minus 60, minus 120, minus 180. So please tell me how you are going to define the gain in antenna, if you have any idea. So can anybody tell me what is gain? So nobody has any idea of gain. So in the last section we have seen antenna. So can anybody tell me what does the antenna do basically? We have defined antenna. Antenna का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Antenna transmit EM waves. Yeah, so based on this only I have defined gain. So I think सबको बताया मैंने, तो केवल एक ही आदमी जवाब दे रहा है, बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? हमेशा I've told you what is antenna, what does antenna do.
Yeah, gain is defined in terms of antenna. Hi, Amisa and ये Dinesh, Komal, I've told you na, and what is antenna? What does antenna do? Amisa, what does antenna do? EM wave is propagated. So basically, electrical signal is changed into the electromagnetic waves, metallic structure that transmit EM waves. Yeah, it is true that transmit EM waves. So if you wanted to define gain, so basically gain मतलब ये होता है कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज कर रहे हैं, तो कितना एफिशिएंट चेंज हो पा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं गेन. एंड हाउ मच transmitted to receiver and vice versa. How efficient it is getting transmitted from electrical to, if transmitting antenna is there, so how efficient it is converted from electrical to electromagnetic form, and it is transmitted in a particular direction. So that is what gain is there. So we have seen isotropic antenna, so which can transmit in all direction. So basically the gain of isotropic antenna will be more as compared to these two antennas, so directional and unidirectional. So basically if I wanted to define gain, so अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए गेन क्या होता है, क्योंकि अगर आप एंटीना में बात कर रहे हैं तो दे विल टेल यू, दे विल आस्क यू अबाउट गेन ओनली. So basically in transmitting antenna, how much efficient the electrical signal is changed into EM waves, or we can say it as radio waves, and it is transmitted in a particular direction, transmitted in a particular direction. मतलब ये हुआ कि कितना एफिशिएंटली जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हम लोग रेडियो वेव्स में चेंज कर रहे हैं और उसको एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट बेसिकली गेन इज. सो इन एंटीना जितना अच्छा गेन होगा उतना ही अच्छा आपका एंटीना वर्क करेगा. सो वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ एंटीना: आइसोट्रोपिक, omnidirectional and directional, and we have seen that isotropic can radiate in all direction. So gain of isotropic will be more as compared to the directional and unidirectional antenna. In directional antenna, we have seen that it can be radiated in a particular direction, and unidirectional will be this kind of antenna will radiate in a plane. So is this clear to you? What is gain? How gain can be defined? किसी को समझा देंगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि how we will define gain in antenna? Is this clear to you? Because एक हाँ एक नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं कि गेन क्या होता है. अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगा तो आप रोक के पूछ लीजिएगा, क्योंकि सी इफ यू हैव रेड सिंस योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सो अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो ये एंटीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर चीजें बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप समझते हुए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, बट प्लीज डोंट कीप एनी काइंड ऑफ डाउट. So whatever time you are giving to me, so please try to utilize that. So now we are going to see the basic parameters of radiation pattern. So we have seen that some one upper lobe is there, one main lobe is there. If you see major lobe is there, we have seen in the last class. So I'll draw in a good way. So major lobe, side lobe, and minor lobe. So one second. Scan. आवाज कम कर. So one major lobe is there. So like we have seen in the last class only. So if I can draw the major lobe, so this will be your major lobe. So this will be your major lobe. Then side lobe was also there. So side lobe was also there. So this will be your side lobe. Then back lobe. This was known as back lobe.
and this 2 will be your side lobe. So this will be, if you can draw the figure in a right way, so if you can draw in a right way, so this will be our major lobe, this will be our side lobe, and this will be our back lobe. So same for this will be your side lobe. So if you can see what is the angle which this one is making. So if you can see the angle which this one is making is 45 degree. So this angle is will be 45 degree. So I'll mark here in the straight line here, from here it will be 45 to the positive and 45 to the negative, because you can see here also 45 degree. This angle what it will be 45, and this side lobe angle you can see one is this one and this one. So you can see that will be 90 and 135. So this side lobe angle, if you can see, so I'll mark here 90 and 135, and same here 9 minus 90 and minus 135. And the back lobe angle, this back lobe angle, what it is, will be 180 degree. So if I can mark, that will be close to 180 degree, 180 degree. So what it will be, this will be back lobe, this two will be of side lobe, this will be your major lobe, and same for this will be of our side lobe, and this one will be for back lobe. So from this, what I'm trying to say, three things comes from there. So that is, first one is half power bandwidth. So this is, first one is half power bandwidth. So somebody will tell you to define half power bandwidth. So by figure I'm telling you, so suppose this is our maximum point, this is 0 degree. So below 3 dB, this will be known as our half power bandwidth. This whole will be our half power bandwidth. So whatever I can define the half power bandwidth, will be the major lobe. So we can call it as, this one is our major lobe. So major lobe situated below 3 dB to the maximum point. So if you can see, this is our maximum point. This if I consider this will be our maximum point, 0 dB. So below this 3 dB, so this 3 dB, this will be your major lobe. मेजर लोब में 3 dB नीचे मैक्सिमम पॉइंट से, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ. Three definitions are there in the questions also. They will ask you to calculate half power bandwidth, full null bandwidth, and side front to back ratio. Three things they are asking you to calculate every time. So if you can see what is half power bandwidth, so I can show you in a proper way. So see, this one was our major lobe. This one was our major lobe. So this one was our maximum point. Suppose I am considering it as a 0 dB. So below 3 dB, this point. So this whole will be the half power bandwidth. Half power bandwidth means the half power bandwidth will be situated in the major lobe below to the maximum point, below 3 dB to the maximum point. So is this clear how we can define half power bandwidth? ये क्लियर है हाफ पावर बैंडविड्थ कैसे होता है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग हाफ पावर बैंडविड्थ में. हाफ पावर, हाउ टू डिफाइन बैंडविड्थ, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हाफ पावर बैंड, ये पूरा एरिया होगा, ये एरिया अगर ये मैक्सिमम हो गया तो यहाँ से 3 dB नीचे, इस यहाँ से मान लेते 3 dB नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ. कुछ पैरामीटर रेडिएशन पैटर्न में वही हम लोग देख रहे हैं. तो फर्स्ट है हाफ पावर बैंडविड्थ. सो बेसिकली हाफ पावर बैंडविड्थ द, okay, I'll repeat it. So basically it is the major lobe. So see, I have drawn the figure for you. So suppose this was the figure. Suppose this was 0 degree, this was 60, 120, 180. This one was minus 60, minus 120, minus 180. So हाफ पावर बैंडविड्थ कुछ यहाँ पे आ रहा था अपना 60 से 45
+45 -45 के बीच में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा क्या था, मेजर लोब था जिसमें रेडिएशन ज्यादा हो रहा था, इससे 3 dB नीचे, मान लेते हैं 3 dB नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरा हो गया हमारा हाफ पावर बैंडविड्थ। वैसे इस फिगर में अगर देखेंगे, इसमें अगर मैं बताऊं, तो इसमें देखिए अगर ये फिगर है, सर्कुलर वेव है, ये फिगर है, अगर ये आपका हाफ पावर बैंडविड्थ है, ये आपका मेजर लोब है, तो यहाँ से 3 dB नीचे ये पूरा एरिया क्या हो गया, हाफ पावर बैंडविड्थ। अभी क्लियर है हाफ पावर बैंडविड्थ क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Okay, so next one is full null bandwidth. So this definitions will definitely going to come into your paper. So for this I am telling you, तो फिगर से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी देखिए फुल नल बैंडविड्थ क्या होता है, FNBW, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फुल नल bandwidth. So full null bandwidth is the total major lobe. So the total major lobe will be known as total major lobe is known as full null बैंडविड्थ। मीन्स अगर ये फिगर है, अगर हमारा ये 0 डिग्री था, ये 60, ये -60, तो टोटल मेजर लोब अगर इसकी बात करें तो ये पूरा हमारा हो गया, ये पूरा एरिया हो गया फुल नल बैंडविड्थ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, लास्ट वाले में क्या देख रहे थे हम लोग, इससे 3 dB नीचे देख रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा ये एरिया, पूरा एरिया, इसको क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, फुल नल बैंडविड्थ। इट इज अ विड्थ ऑफ ए मेजर लोब। इफ यू कैन डिफाइन इन वन वर्ड, इट इज अ विड्थ ऑफ ए मेजर लोब। जितना भी मेजर लोब का विड्थ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फुल नल बैंडविड्थ। नाउ लास्ट पार्ट इज, वन मोर पार्ट इज देयर, one more thing is there for definition, front to back ratio, back ratio. So if you can define this front to back ratio, so I will define this as a ratio of gain of major lobe to back lobe। मीन्स जो भी गेन हमको मेजर लोब का मिलेगा, अगर ये हमारा अगर 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 देखें हम, इफ दिस इज आवर मेजर लोब, दिस वन इज आवर मेजर लोब, और ये हमारा बैक लोब था, तो इन दोनों का जो भी गेन होगा उनका रेशियो, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं फ्रंट टू बैक रेशियो। मीन्स दोनों के रेशियो को ही डिफाइन करेंगे, जो इसका जो कुछ पार्ट, this one upon this one is known as front to back ratio. So 3 things we have seen: half power bandwidth, full null bandwidth, and front to back ratio. So half power bandwidth is basically the major lobe situated below 3 dB to the maximum point. And if you can see a full null bandwidth, so it will be the full width of the major lobe, and front to back ratio will be the ratio of gain of major lobe to the back lobe. So basically major lobe क्या होता है, major lobe means in where the radiation part will be more, जहां से एंटीना ज्यादा पावर को रेडिएट करेगा। एंटीना का काम क्या है, बेसिकली पावर रेडिएट करना। कैसे पावर रेडिएट करता है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उनको रेडियो वेव्स में ट्रांसमिट करके रेडिएट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो मेजर लोब मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिटिंग पार्ट, जहां से मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर लोब। सो इफ दिस इज क्लियर, सो आई विल टेल यू वन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर, RTU paper. So this question has came, so we'll try to solve it. So question was like that. So the question was like that: an antenna is having a field pattern E theta equal to cos theta, and theta is varying from
0 to 90. So they are asking you to calculate, find half power beam width. So it is basically beam width. Second one is full null beam width. So this was the question which has been asked into your paper. So the field pattern of antenna was given as E theta equal to cos theta, and theta was varying from 0 to 90, and they are asking you to calculate, find half power beam width and full null beam width. So one question I will solve for you. So after that, second question you have to try by yourself. So let's see how we are going to deal with this question. So क्वेश्चन था cos थीटा वेरी कर रहा है 0 to 90 डिग्री में. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम. ये डायग्राम बनाएंगे. मेजर लोब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेजर लोब ये हो गया. कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? अगर ये 0 डिग्री हो गया, यू कैन सी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड दिस इज वेरिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. So from here to here you can see this is varying. So हम क्या we are already aware that power is directly proportional to E square. ये हमको पता है. This one we are aware of. I'll write question here that E theta equal to cos theta and it is varying from. एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E square. So we are already aware of this. So what I can tell from here? So I can tell from here E is directly proportional to under root P. ये हमको पता है. So we needed to calculate half power beam width and full null bandwidth. So what I can write here, at half power beam width, power will be half. Power is half, and at the same electric field should be 1 by root 2 to the maximum electric field. How I have written that कि E will be directly proportional to under root P. तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाफ पावर बीम विड्थ पे थीटा का cos थीटा कहाँ रेडिएट कर रहा है. So from is this statement clear to you कि at half power beam width power will be half because we are calculating at. So उस पोजीशन में पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड E शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P. अगर इसको खोलेंगे तो कितना 1 by root 2 के बराबर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 1 by root 2 टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर cos 0 1 है, cos 0 1 आएगा तो मैक्सिमम यहाँ पे आ गया. तो 1 by root 2 कहाँ आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा 1 by root 2. ये चीजें क्लियर है कैसे मैंने लिखा है इसको. cos 0 पे 1 आएगा मतलब मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है. हमको किस पे कैलकुलेट करना है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. सो E शुड बी 1 by root 2. तो 1 by root 2 किधर आ रहा है? देखिए आप नीचे आएगा. कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा. इज दिस क्लियर टू यू हाउ आई हैव रिटन दिस? चारू इज टेलिंग यस. और बाकी लोगों को अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, मैं समझाऊंगा फिर से कैसे लिखा है इस स्टेटमेंट को. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 1 by root 2. तो अगर हम रिलेशन खोजेंगे थीटा और, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? ये पूरा हमारा क्या हो गया? हाफ पावर. यही तो हमारा थीटा एचपी है. थीटा एचपी मतलब हाफ पावर बीम विड्थ. हाफ पावर बीम विड्थ मैंने पहले क्या बोला था? इस अगर ये 1 by root 2 है तो इससे 3 dB नीचे है, तो यही पूरा हमारा थीटा एचपी है. अगर थीटा और थीटा एचपी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू थीटा एचपी बाई 2. क्योंकि दो डायरेक्शन है, इधर भी है और ये भी है और ये भी है, ये भी है, दोनों है. तो थीटा इक्वल टू थीटा एचपी बाई 2. सो इफ यू कैन कैलकुलेट थीटा एचपी, व्हाट इट विल बी? 2 थीटा. सो क्योंकि आप देखिएगा ये दोनों एरिया है हाफ पावर बीम विड्थ का. सो व्हाट इट विल बी? थीटा इक्वल टू रिलेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा एचपी. इसी चीज को तो हम मान रहे हैं कि हाफ पावर बीम विड्थ ये है. तो थीटा इक्वल टू थीटा एचपी बाई 2, क्योंकि ये 1 by 2, ये 1 by 2. So what we are getting here, theta hp equal to 2 theta. Now we have to calculate the value of theta. So what we are knowing that E theta equal to
कॉस थीटा और जिसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, दिस 1/√2 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 45 डिग्री। और जब थीटा एचपी कितना आएगा, हाफ पावर बीम विड्थ, थीटा एचपी इक्वल टू 2 इंटू 45, दैट विल बी 90 डिग्री। सो प्लीज टेल, अगर इसमें कैसे निकाला मैंने हाफ पावर बीम विड्थ, इसके बाद से हम फुल पावर फुल नल बैंडविड्थ निकालेंगे। पहला पहला केस ये निकाला है मैंने। इसमें बताइए आपको दिक्कत है तो फिर से मैं समझाऊंगा कैसे निकाला, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 3 नंबर में कि हाउ टू कैलकुलेट हाफ पावर बीम विड्थ फॉर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सो एक क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आपको लगाने के लिए। अभी बताइए इसमें दिक्कत है आपको, ये कैसे निकाला मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, फिर से बताओ अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मैं फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, हमेशा स्टेलिंग एक बार बताने के लिए। सो ये एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड 1/√2, ये अगर क्लियर है अपने को, तो अगर आप देखो इसका डायग्राम बनाऊं मैं, अगर ये डायग्राम बनाता हूं मैं, अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सो व्हाट यू आर से, अगर ये मैक्सिमम 1 है तो यहाँ पे 1/√2 आ रहा है हमारा cos थीटा, 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और ये पूरा हमारा कितना है, थीटा एचपी है, हाफ पावर बीम विड्थ, जो कि हम लोगों ने देखा है 3 dB नीचे पूरा क्या है। तो अगर ये, तो अगर थीटा और थीटा का रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा एच पी बाई 2, क्योंकि एक पार्ट ये, दोनों डायरेक्शन वी हैव टू सी। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू, थीटा एचपी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, एक थीटा ये और एक थीटा ये, दोनों मिला के 2 थीटा। देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो वी आर ऑलरेडी नोइंग दैट e theta equal to cos theta, which is equal to 1/√2, which we have got here 1/√2. So from here if you can calculate value of theta, what it will be, 45 डिग्री। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू देखेंगे तो 45 डिग्री आएगा। एंड फ्रॉम हियर if you can put there theta hp, so it will be 2 into 45, that will be 90 degree. So from here we have got the value of theta hp as 90 degree. So this is the first part. Now I'm going to show you the second part, how to calculate full null bandwidth. इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप फिर से पूछिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, आपके मिड टर्म में भी आएगा और एंड टर्म में भी तो आना ही है। अगर आपके पास पेपर हो लास्ट ईयर का, अपने सीनियर से पूछिएगा, उनको भी मिला था। So see, now I have to calculate full null bandwidth. So the diagram I will make here. So एक बार अगर देखेंगे तो थीटा नल किस पे आ रहा है, नल नल मतलब जीरो। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो इस पे इसी चीज पे तो थीटा 0 डिग्री हो रहा है। हमको क्या निकालना है, फुल नल बैंडविड्थ। थीटा इक्वल टू 90, मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो हमको निकालना है फुल नल बैंडविड्थ। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, थीटा एफ एन बी डब्ल्यू इक्वल टू 2 थीटा डैश, दैट विल बी 2 into 90, which is equal to 180 डिग्री। क्योंकि cos 90 पे यही इसी पे तो हमको क्या मिल रहा है, जीरो नल मिल रहा है, जीरो वैल्यू मिल रही है। इस पे क्या मिल रहा था हमको, 1 वैल्यू मिल रही थी। और हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना था, 1/√2 तक। 1/√2 कहाँ से आया, फ्रॉम हियर p is directly proportional to e square, where e should be equal to √p। तो हम लोगों ने 1/√2 यहाँ माना, और इस 2 थीटा इसको मान लिया। इससे हम लोगों ने हाफ पावर बीम विड्थ कैलकुलेट कर लिया। फॉर फुल नल बीम विड्थ यू कैन सी at theta equal to 90 degree, there will be value will be null, कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो वैल्यू होगी हमारे पास। तो क्या कर दिया, 2 थीटा डैश इक्वल टू 2 into 90, which is equal to 180 डिग्री। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 2 या 3 नंबर पे प्रॉब्लम आएगा। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, आप खुद से लगा के बताइए कि हाफ पावर बीम विड्थ कितना है और फुल नल बीम विड्थ कितना है। प्रॉब्लम वाज लाइक दिस, and ऐसी सेम प्रॉब्लम है, एंटीना इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड pattern which is given as e theta equal to
ई थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ई थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और इसमें हमको वेरिएशन नहीं दिया हुआ है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। पिछले वाले में अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो वेरिएशन दिया हुआ था 0 से लेकर 90 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 360 तक बनाएंगे, जो भी हमारा लोब होगा, मेजर लोब होगा। So please try to attempt this question and tell me what is the value of half power beam width and full null beam width. प्लीज यू हैव 2 minutes ऑफ टाइम प्लीज। अगर किसी से लग जा रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। एक बार कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ई थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट फाइंड हाफ पावर बीम विड्थ एंड फाइंड फुल नल बीम विड्थ। तो जैसा पिछला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही इसको लगाइए। इसमें हमको लिमिट नहीं दी हुई है, इसमें हमको 0 से 360 तक मानना है। पहला हमको दिया हुआ था 0 से लेकर 90 तक। क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार प्लीज इसको लगा के बताइए कि कितना वैल्यू आएगा। हाफ, पहले तो हाफ पावर बीम विड्थ की वैल्यू बताइए। तो अगर इसका मेजर लोब बनाएंगे हम लोग, आप सॉल्व कर रहे हैं कि मैं बताऊं आपको? So are you trying to solve, or should I tell you? Please tell. Please be quick and fast. हमेशा आप कर रही हैं कि मैं बताऊं? यस मतलब आपके लिए कि मेरे लिए? ट्राइंग, ओके गुड। सो लेट मी आपके साथ साथ पैरेलली में भी फिगर बना रहा हूँ। तो कैसे बनेगा ये? ऐसे बनेगा। अगर आप लोगों ने फिगर सही बना दिया तो मान लेते हैं थीटा 0 डिग्री है, ये 90 हो गया, यहाँ 180 आएगा, 180, 270, 360। तो पहले तो मेजर लोब का फिगर बनाते हैं। तो साइन साइन 90 पे वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। साइन 90 पे 1 होगी, साइन 180 पे 1 होगी, बाकी 0 पे 0 रहेगी। कैसे बनेगा ये फिगर? ऐसे बनना चाहिए। ऐसे बनेगा क्योंकि साइन 90 पे कितना वैल्यू है? 1 होगा, और साइन 180 पे भी कितना होगा? 1 होगा, बाकी 0 पे तो 0 ही रहेगा ना। थोड़ा फिगर में दिक्कत होता है, मुझे बनता नहीं मेरे से। एक बार मैं फिर से कोशिश करूँ। ये फिगर बनेगा ऐसा। क्यों ऐसा बनाया मैंने? क्योंकि साइन पहला वाला अगर आप देखेंगे कॉस की वैल्यू थी तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 था। तो ऐसे बन रहा था मेजर लूप, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो रही थी तो मेजर लूप इस पे आ रहा था। अभी क्या है, साइन 90 है तो साइन 90 की वैल्यू थीटा 45, हाफ पावर बीम विड्थ 90, वेरी गुड। फुल नल बैंडविड्थ, फुल नल बैंडविड्थ, बीम विड्थ सॉरी, पहला आपका बिल्कुल सही है अदिति। 90 डिग्री आएगा मेरे ख्याल से। हाँ 90 आएगा। थीटा इक्वल टू 45 टू थीटा 45 इंटू 290। हाँ सेकंड फुल नल बीम विड्थ अदिति। अगर सभी लोग कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर क्योंकि ये सीख जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर यू विल एंजॉय इट। देखो कम ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्योंकि अगर आप बीटेक से निकलोगे तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या पढ़े हो। 180 डिग्री बहुत बढ़िया। 180 डिग्री कैसे आया है? आप डायरेक्ट कैसे निकाले 180 डिग्री? हमेशा कैसे आया 180 डिग्री, एक बार बताओ, सबको बताओ एक बार। सो सर आई हाफ पावर बैंडविड्थ थीटा मल्टीप्लाई विथ 2। हाँ तो वो आ गया 90 डिग्री। ओके, एंड हाउ 180 डिग्री फॉर फुल नल बैंडविड्थ, हाउ 180 डिग्री इट इज कमिंग? सर सो उसी के लिए था, मल्टीप्लाई विथ 2 हाफ पावर बैंडविड्थ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, और किसी ने निकाला है?
So see, e theta equal to sin theta, which will be equal to 1 by root 2, last step की तरह ही. फिर what I will get here, theta will be 45 degree. So यहाँ से क्या निकल जाएगा, theta half power beam width will be equal to 45 into 2, that will be 90 degree. So half power bandwidth कितना निकल गया, 90 डिग्री. अब क्या निकालना है हमको, फुल नल बैंडविड्थ. तो फुल कहाँ कहाँ नल होगा, 180 पे नल होगा और 0 डिग्री पर नल होगा. तो क्या लिख देंगे हम, 180 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 180. ऐसे निकलेगा. लास्ट केस में 90 इंटू 2 क्यों कर दिया था मैंने, क्योंकि उस हमारा लिमिट दिया हुआ था 0 से लेकर 90 तक का. अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा तो इसमें लिमिट दिया हुआ था. अगर लिमिट नहीं देता तो डायरेक्ट उस पर भी माइनस कर सकते थे. इसमें क्या लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो कॉस साइन थीटा 0 कहाँ पे आएगा, एक तो 180 पे आएगा और एक 0 डिग्री पे आएगा. तो क्या कर देंगे हम डायरेक्ट 180 माइनस 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो इज दिस क्लियर, कैसे लगाया मैंने. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा. फर्स्ट पार्ट सभी लोगों ने लगा लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने, अगर जिसने ट्राई किया. हाँ अदिति, रिपीट करता हूँ मैं. देखो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर अदिति, आपको 45 कैसे आया, 90 कैसे आया, ये आपने निकाल दिया था शायद, आपको क्लियर होगा. हाँ सेकंड पार्ट देखो, फुल नल बैंडविड्थ. तो नल कहाँ पे आएगा, थीटा नल कहाँ पे हो रहा है, साइन थीटा के केस में नल कहाँ पे होगा, एक तो 180 डिग्री पे होगा और एक 0 डिग्री पे होगा. दो केस पे नल हो रहा होगा. तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 180 माइनस 0, डायरेक्ट कितना वैल्यू आ गया, 180. दो ही पोजीशन पे तो नल होगा. लास्ट केस में अगर आप देख रहे हो सिर्फ एक पोजीशन पे नल हो रहा था, क्योंकि वहां पे लिमिट दी हुई थी 0 से लेकर 90 तक. लास्ट केस का लिमिट क्या था, 0 से लेकर 90 की लिमिट दी हुई थी, तो सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा था. अगर लास्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो टू थीटा डायरेक्ट क्यों लिख दिया था हम लोगों ने, क्योंकि थीटा सिर्फ 90 डिग्री पे ही 0 हो रहा था. तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंटू 90 कर दिया, तो कितना आ गया, 180. यहाँ पे कितने 180 पे भी 0 आ रहा है और 0 पे भी 0 आ रहा है, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 180 माइनस 0 इक्वल टू 180 डिग्री. अदिति क्लियर है. ओके, अगर किसी को डाउट है तो, अगर और किसी को डाउट है इसमें. किसी और को डाउट है. ओके, सो let me take the attendance. So 11 people are there. So can आदित्य, आप लोग किसी कोई एक आदमी मुझे ये इसका ये बना देंगे, ये क्या बोलते हैं, पीडीएफ बना के भेज देंगे अटेंडेंस का, जो भी 11-10 लोग हैं हमारे क्लास में. आपसे बन जाएगा 10 लोगों का पीडीएफ, डायरेक्ट चेंज करना आता है आपको. तो प्लीज सेंड मी द पीडीएफ ऑफ दिस 10 पीपल. और अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी. अभी आपका मिड टर्म का, अभी जो सेशनल नंबर भेजा है हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर का, तो अटेंडेंस पे ही भेजा है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में सभी लोग लिख दे रहे हैं, लिखने का सभी लोग लिख दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे प्रायर बता दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक एक आदमी का अटेंडेंस हर क्लास का रख रहा हूँ. अगर नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए आप लोग. तो अदिति, अगर क्लास खत्म होने के बाद से प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस ऑफ दिस 10 पीपल. और अब आज के क्लास यही खत्म करते हैं, अगले कल देखेंगे. और अगर आप बताइए कि अब अगला क्लास लेने में कब कंफर्टेबल है, ताकि मुझे मैक्सिमम अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि आपका पैरेलल में 2-3 क्लासेस चल रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एग्जॉस्ट हो जा रहे होगे आप लोग. तो ऐसा नहीं है, जब भी आप बताओ, कल चाहते हो या परसों चाहते हो, क्योंकि मैं आईटीसी पढ़ाता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में, तो वो लोग सामने से बोलते हैं, आप उनसे पूछना. ये उनकी सीआर है, कोमल नाम है, वो लोग सामने से रोज मैसेज करते हैं मुझे कि सर आज क्लास ले लीजिए, आज क्लास ले. मुझे मना करना पड़ता है कि आज नहीं लेंगे, तो वो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं. अगर आप उनका नोट्स देखना आईटीसी का और अपना कंपेयर करना एक बार, फिर आपको फर्क दिखेगा. तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को आज मैंने उनको बोल के क्लास नहीं रखा है, क्योंकि आपको पढ़ाना था. तो कल मैं लूंगा उनकी क्लास. आप बताइए नेक्स्ट कब आप फ्री होके, ताकि मुझे बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़े, आए हम लोग स्टार्ट कर दे जब भी आपका मन हो. हफ्ते में 3 दिन पढ़ना है आप अपने को एंटीना, तो जो 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 डे आप बोलोगे उसी दिन क्लास रखेंगे. आई डोंट वांट टू मेक यू एग्जॉस्ट. मैं चाहता हूँ एंजॉय करके पढ़ो यार, जितना भी पढ़ो. अगर 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, चीजें समझ में आनी चाहिए बस. सो प्लीज टेल मी व्हेन आर यू गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्लास, टुडे और टुमारो. सो जिस दिन आप कंफर्टेबल होंगे उसी दिन, क्योंकि हफ्ते में अपनी 3 ही क्लास है, तो वी आई विल अरेंज कि 2 दिन में एक हो जाए, या जैसा आप बोलेंगे. तो बताइए, इसमें तो ये तो बताइए. वेडनेसडे. सो वेडनेसडे को एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन वेडनेसडे. सो लेट मी टेक एवरीवन्स वोट.
Okay, so we will do like this only. Monday, Wednesday and Friday we will put this our class like this. Monday, Wednesday और Friday एक एक घंटे क्लास रखेंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगा. तो वेडनेसडे को मैं टाइम आपको बता दूंगा, सुबह ही बता दूंगा. तो आप वेडनेसडे को मैं आपके ग्रुप पे जो भी है लिख दूंगा और आपके सीआर अदिति को बता दूंगा मैं. तो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस लिस्ट. ऑल्दो 10 पीपल आर देयर, सो आई मुझे ये लिस्ट रखना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो. So thank you for today's class. अभी आपका नेक्स्ट क्लास होगा शायद. So you can leave the meeting.